everyone. So, as I promised, I'm back with Act 2, Scene 2 of The Merchant of Venice. Time pass करें या start करें? Let's start. Let's not waste any time. Exams are around the corner, so hurry up. Okay, so this Act 2, Scene 2 is divided into three sections. Okay, this Scene 2 is divided into three sections, and I will tell you that which section starts where when I'll reach that place. Right now, the first section is about Lancelot. Lancelot is servant of Shylock. Shylock is a Jew and Lancelot is a Christian. So already it's like an insult to him that he is serving a Jew. Okay, so this is a dialogue which you can say that it is a monologue. Lancelot is talking to himself. Fine, there is no other person, and he is in this dilemma that he should continue serving Shylock or he should just leave him now. Because according to him, Shylock is not a good man. So let's see what happens here. Scene 2, Venice, a street. Again, it's a street in Venice. And this is the first section, mark it, okay? Certainly my conscience will serve me to run from this Jew, my master. So he's sure that he will feel guilty, but he also thinks that his conscience will permit him to run away from his Jew master. See how he has mentioned Jew, my master. He is not saying Shylock, my master. This is how strong it was for those people कि वो Jew है या Christian है. ये इतना ज़्यादा दिमाग में बैठा हुआ था. Okay. The fiend is at mine elbow. Fiend means devil. अब ऐसे इमेजिन करो कि जैसे कोई पर्सन है, आपने कार्टून्स में देखा होगा, एक पर्सन है, एक तरफ एंजल बैठा है, एक तरफ डेविल बैठा है, डीमन बैठा है, एंड उन दोनों में एक वो चल रहा है. एंजल बोल रहा है सब मत करो, गलत है. डेविल बोल रहा है करो करो जरूर करो, मजा आएगा. तो अभी उसके एल्बो पर एक डेविल बैठा है एंड टेम्प्ट्स मी सेइंग टू मी गोबो, लॉन्सलॉट गोबो, गुड लॉन्सलॉट और गुड गोबो और गुड लॉन्सलॉट गोबो. तो इनमें से कोई भी एक नाम से बुला रहा है. यूज योर लेग्स, टेक द स्टार्ट, रन अवे. क्या बोल रहा है? अरे अपने पैरों को यूज करो, स्टार्ट करो और भागो यहां से. माई कॉन्शियंस सेज, लेकिन अब मेरा कॉन्शियंस क्या बोल रहा है, मतलब एंजल साइड क्या बोल रहा है? नो, टेक हीड. हीड मीन्स केयर, टेक केयर. ऑनेस्ट लॉन्सलॉट, वो क्या बोल रहा है? ऑनेस्ट लॉन्सलॉट, नॉट गुड लॉन्सलॉट. ऑनेस्ट मीन्स इफ यू आर ऑनेस्ट, यू आर ट्रस्टवर्दी, यू आर लॉयल, सो यू विल नॉट लीव योर मास्टर लाइक दिस. ऑनेस्ट लॉन्सलॉट, टेक हीड. ऑनेस्ट गोबो, और एज अफोरसेड. अफोरसेड मीन्स एज सेड बिफोर, जैसा पहले भी कहा था. ऑनेस्ट लॉन्सलॉट गोबो, डू नॉट रन. तो नाम तो इतने सारे हैं, लॉन्सलॉट, गोबो, गुड लॉन्सलॉट, गुड गोबो, लेकिन इसने बोला ऑनेस्ट. डू नॉट रन. Scorn running with the heels. Scorn running with the heels means you should hate it. Fine, you should dislike it. You should not do this, running with the heels. Heels means legs. Well, the most courageous fiend bids me pack. Via, says the fiend. Away, says the fiend. For the heavens, rouse up a brave mind. So it says, जो उसका डेविल है उसने बोला, फिर से आई एम सेइंग दिस थिंग. वेल द मोस्ट करेजियस फील्ड बिट्स मी पैक मीन्स पैक ऑफ, बी गॉन, जाओ जाओ जाओ. वो तैयारी करने को बोल रहा है. वाया, वाया का एक्चुअली लिटरल मीनिंग होता है रोड. फाइन, लिटरल मीनिंग एज पर डिक्शनरी, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है गो, जाओ जाओ. वाया, गो, सेज द फील्ड. अवे, जाओ, सेज द फील्ड. For the heavens, rouse up a brave mind. Rouse up means awake. Awake a brave mind. अपने आप को जगाओ, अपने दिमाग को जगाओ. Brave mind को मतलब डरो मत, जाओ. Then he said, well, my conscience hanging about the neck of my heart. मेरा जो conscience है, it is clinging to my heart. एकदम लटका हुआ है यहाँ पे, छोड़ नहीं रहा है मुझे. Says very wisely to me, और वो बहुत इंटेलिजेंस के साथ बोल रहा है. My honest friend Lancelot, being an honest man's
son, or rather an honest woman's son. Well, my conscience says, Lancelot, budge not. Budge means move not. पहले उसने बोला my honest friend Lancelot, तुम एक ऑनेस्ट मैन के बेटे हो, बल्कि तुम एक ऑनेस्ट वुमन के बेटे हो. मतलब ये तो कॉन्शियंस भी नहीं बोल रहा कि यू आर सन ऑफ अ ऑनेस्ट मैन. देन हिज कॉन्शियंस सेज, लॉन्सलॉट, बज नॉट. बज नॉट मीन्स मूव नॉट. बज सेज द फींड, और फींड क्या बोल रहा है? बज, मतलब मूव. बज नॉट सेज माई कॉन्शियंस. कॉन्शियंस बोल रहा है बज नॉट. फींड मतलब डेविल बोल रहा है बज. कॉन्शियंस से आई यू काउंसिल वेल. कॉन्शियंस से आई, मैंने बोला कॉन्शियंस को तुम अच्छी एडवाइस देते हो, यू काउंसिल वेल. फींड को मैंने बोला से आई यू काउंसिल वेल. टू बी रूल्ड बाय माई कॉन्शियंस आई शुड स्टे विद द ज्यू माई मास्टर. Who? God bless the mark. God bless the mark means, if I may say so, is a kind of devil. तो अब वो दोनों का कंपैरिजन कर रहा है. ही इज सेइंग कि दोनों मुझे अच्छी एडवाइस दे रहे हैं. ठीक है, ये भी अच्छी दे रहा है, कॉन्शियंस है, और डेविल भी. लेकिन अगर मैं कॉन्शियंस की बात मानूंगा तो क्या होगा? मुझे अपने जू, अपने मास्टर के साथ रहना पड़ेगा. एंड इफ आई एम टू से सो, इज अ काइंड ऑफ डेविल. माई मास्टर इज काइंड ऑफ डेविल. एंड टू रन अवे फ्रॉम द ज्यू, और अगर मैं भाग जाऊं, आई शुड बी रूल्ड बाय द फींड. तो मुझे डेविल की बात माननी पड़ेगी. तो कायदे से बात तो हमें किसकी माननी चाहिए? एंजल की. लेकिन एंजल की बात मानने पे मुझे एक डेविल के साथ रहना पड़ेगा, और डेविल की बात मानूंगा तो मुझे डेविल से छुटकारा मिल जाएगा. सो ही इज सेइंग आई शुड बी रूल्ड बाय द फींड हु सेविंग योर रेवरेंस. सेविंग योर रेवरेंस में मीन्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इज द डेविल हिमसेल्फ. लो, तो मैं डेविल की बात मान के डेविल से छुटकारा मिल जाएगा. सर्टेनली द ज्यू इज द वेरी डेविल इनकारनेशन. इनकारनेशन मीन्स ही इज इनकारनेट इन ह्यूमन फॉर्म. मतलब डेविल जो है वो ह्यूमन फॉर्म में अवतरित हुआ है धरती पर. एंड इन माई कॉन्शियंस इज बट अ काइंड ऑफ हार्ड कॉन्शियंस. like it's hard here means strict. My conscience is hard conscience. टू ऑफर टू काउंसिल मी टू स्टे विद द जू. स्ट्रिक्ट है इसीलिए बोल रहा है कि जू के साथ रुको बिकॉज यू आर ऑनेस्ट. द फींड गिव्स मी द मोर फ्रेंडली काउंसिल. लेकिन जो मेरा डेविल है वो स्ट्रिक्ट नहीं, वो फ्रेंडली है. आई विल रन फींड, माई हील्स आर एट माई कमांडमेंट, आई विल रन. सो मैं यहाँ से भाग रहा हूँ. माई हील्स आर, माई लेग्स आर एट योर सर्विस. तो फींड, माई डेविल, जो तुम बोल रहे हो मैं वैसा करूँगा. तो देखो, बहुत सिंपल था. लॉन्सलॉट गोबो का खुद का मोनोलॉग था ये. वो नहीं रहना चाहता है अब अपने बॉस के साथ, हु इज शैलॉक, हिज मास्टर शैलॉक. ही डजंट वांट टू लिव विद हिम. बट as we all have two powers to control us, angel side बोल रहा है मत जाओ, you are honest person. So an honest person should not leave, should not run away from his master, चाहे master कैसा भी हो. और जो मेरा डेविल साइड है वो बोल रहा, अरे भाग, तू तो भाग यहाँ से, तुम यहाँ पे क्यों हो, मतलब यू शुड रन अवे. तो अकॉर्डिंग टू हिम वो क्यों सुन लेता है? अपने गुड पार्ट की नहीं सुनता, बैड पार्ट की सुनता है. बिकॉज डेविल की सुनने पर उसको डेविल से छुट्टी मिल जाएगी, हु इज शैलॉक. तो अकॉर्डिंग टू हिम डेविल तो है वो जो मेरे यहाँ बैठा है, वो डेविल है, इट्स फींड, बट वो फ्रेंडली एडवाइस दे रहा है. और जो कॉन्शियंस, जो एंजल है, वो स्ट्रिक्ट एडवाइस दे रहा है. सो इट्स बेटर कि मैं डेविल की बात सुनूं और यहाँ से भाग जाऊं. नाउ अनदर कैरेक्टर विल एंटर द सीन. He is Old Gobbo, and Old Gobbo is father of Lancelot Gobbo. But Old Gobbo has this problem of vision. अच्छे से नजर नहीं आता. So let's see what happens. Gobbo, master young man, you, I pray you, which is the way to master Jews? So he is asking Lancelot only. Master young man, इसका मतलब उसने Lancelot को नहीं पहचाना, उसको नजर नहीं आता अच्छे से. Master young man, you, I pray you, I request you, which is the way to master Jews. अब इससे इस लाइन से हमें एक चीज पता चलती है कि शायलॉक was a very very renowned popular Jew at that place, because he has not mentioned Shylock, he has mentioned master Jews.
मतलब ज्यू का जो हाउस है, मास्टर ज्यू का हाउस, तो ज्यू तो कोई और भी हो सकता है, बट दिस मीन्स शार्लॉक वॉज रियली पॉपुलर. ओके. लॉन्सलॉट असाइड, पहले भी बताया था, असाइड मतलब साइड में जाके सोचा, मतलब जोर से बोला क्योंकि ऑडियंस को सुनाई दे प्ले में, एंड वापस आया. सो दिस इज हिज थिंकिंग. Oh heavens, this is my true begotten father, who is being more than sand blind, high gravel blind, knows me not. I will try confusions with him. So he said, oh heavens, ये तो मेरे पापा हैं, and who being more than half blind. Sand blind का मतलब half blind. High gravel blind का मतलब भी half blind. So he's saying he's more than half blind. Knows me not, मुझे पहचाना ही नहीं. I will try confusions with him. Confusions means experiments, मतलब मैं इनके साथ कुछ prank करूंगा. एंड येस, मैं बिगॉटन का मतलब भूल गई. जब हम किसी को एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं, मतलब पेरेंट जब बच्चों को एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं, बट ये जो वर्ड है यहाँ पर एज अ जोक यूज हुआ है, बिकॉज ट्रू बिगॉटन फादर नहीं होगा. इट्स लाइक बिगॉटन सन. सन इज बिगॉटन, सन को लेकर आया एग्जिस्टेंस में फादर. सो इट इज द फादर हु बिगेट्स अ सन. तो यहाँ पर ही हैज यूज्ड इट एज अ जोक, बट overall he said that he's more than half blind and he's unable to recognize me, and I will try confusions with him. I'll prank with him. Gobo said, master young gentleman, I pray you, which is the way to master Jews? I request you, can you please tell me which is the way? रास्ता क्या है शार्लॉक के घर का? लॉन्सलॉट said, अब लॉन्सलॉट तो प्रैंक करने वाला है. टर्न अप ऑन योर राइट हैंड एट द नेक्स्ट टर्निंग. सीधे जाओ, जो नेक्स्ट टर्निंग आएगी वहां से राइट लेना. बट एट द नेक्स्ट टर्निंग ऑफ ऑल, उसके बाद जो फॉलोइंग टर्निंग आएगी, ऑन योर लेफ्ट, पहले राइट फिर उसके बाद लेफ्ट, मैरी. और फिर वो एक माइल्ड ओथ लेता है, कसम से बोल रहा हूं मैं, तो मैरी का मतलब है बाय द वर्जिन मैरी, सो इट्स लाइक अ माइल्ड ओथ. एट द वेरी नेक्स्ट टर्निंग, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्निंग आएगी वहां कोई टर्निंग मत लेना, but turn down indirectly to the Jew's house. Now indirectly is a mistake, उसको बोलना चाहिए था directly to the Jew's house. But Lancelot की जो mistakes हैं वो इस play में comedy का काम कर रही थी. वो जब play चल रहा था तो it was a good comic timing. Fine. Again I'm saying Lancelot ने बोला straight जाओ, एक टर्निंग आएगी राइट लेना, फिर टर्निंग आएगी लेफ्ट लेना, फिर टर्निंग आएगी कोई टर्न मत लेना. टर्न डाउन इनटू द straight Sherlock's house indirectly. Okay. Gobo said, by God, Sontes means by God, saint. It will be a hard way to hit. It will be a hard way to find. बहुत difficulty होगी ढूंढने में. Hit means find. Can you tell me whether one Lancelot that dwells with him, dwell with him or no? Can you tell me उनके साथ एक Lancelot, वन लॉन्सलॉट रहता है उनके साथ, वो अभी उनके साथ रहता है या नहीं रहता है? लॉन्सलॉट सेड, टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट. अच्छा, आप यंग मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं. और फिर साइड में असाइड फिर से जाकर सोचता है, मार्क मी नाउ, अब मुझे देखना, नाउ आई विल रेज द वाटर्स, अब मैं प्रैंक का लेवल और हाई कर दूंगा. टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, आप यंग मास्टर लॉन्सलॉट की बात करो ना. ही इज अ सर्वेंट, और वो अपने आप को क्या बोल रहा है? मास्टर लॉन्सलॉट. गोपो, नो मास्टर सर, बट अ पुअर मैन सन. ही इज नॉट अ मास्टर सर, वो तो एक पुअर मैन का बेटा है. हिज फादर, दो आई से इट, इज एन ऑनेस्ट एक्सीडिंग पुअर मैन. उसके जो फादर हैं, अगर मैं बोल सकूं, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, हालांकि बहुत पुअर है. एंड गॉड बी थैंक्ड, वेल टू लिव, और भगवान की कृपा से अभी अच्छी लाइफ जिएंगे. Lancelot said, well, let his father be what a will, and we talk of young master Lancelot. So he said, जो उसके पापा हैं वो हैं. A means he. Let his father be what he will. जो उसके पापा हैं उनको होने दो. We talk of young हम बात कर रहे हैं young master Lancelot की. So Gopo said, your worship's friend and Lancelot sir, please don't call him that. He's saying in respectful manner, he's saying please don't call him that, master. And Lancelot sir, he's just Lancelot. Lancelot said, but I pray you, I request you, Arco in Latin means therefore.
लॉन्सलॉट को ये नहीं पता देयरफॉर यूज कहाँ करना चाहिए, तो वो बस कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बोल के, आई प्रे यू देयरफॉर ओल्ड मैन, देयरफॉर आई beseech you talk you of young master Lancelot. मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार, आई एम आस्किंग यू टू टॉक अबाउट ओनली young master Lancelot. Gobo said of Lancelot, and please means if it pleases your mastership. Now this mastership is a word invented by Gobo. उसने सोचा ये वर्ड यूज कर लेता हूँ ऐसे पर्सन के लिए जो इतना इंसिस्ट कर रहा है बार बार मास्टर लॉन्सलॉट, तो उसने मास्टरशिप वर्ड ही इन्वेंट कर दिया. So here Lancelot replies, when he said that if it pleases your mastership, Lancelot replies, Ergo, Master Lancelot, talk not of Master Lancelot. Let's not talk of Master Lancelot. पहले क्या बोल रहा था? Talk of Master Lancelot. अब वो बोल रहा है talk not of Master Lancelot. Father उसने बोला है in respect, common way of respecting and addressing an old man. For the young gentleman, according to fates and destinies, and such odd sayings, the sisters three and such branches of learning is indeed deceased. तो उसने कई सारी चीजें कहा कि for according to fates and destinies, किस्मत की वजह से, थ्री सिस्टर्स की वजह से, एंड अदर ब्रांचेस ऑफ लर्निंग. तो पहले समझ लिए सब क्या है. किस्मत तो पता है, फेट्स एंड डेस्टिनीज तो पता है. जो सिस्टर्स उसने बोला, सिस्टर्स थ्री, लिख लो इसको. दीज आर द थ्री सिस्टर्स ऑफ एंशियंट ग्रीक. थ्री सिस्टर्स ऑफ एंशियंट ग्रीक. देयर नेम्स आर क्लोथो, CLOTHO, क्लोथो, Lachesis, 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 and Atropos, ATROPOS, Atropos. So these three sisters were called fates and destinies. कुछ लोग मतलब किस्मत की जगह ये तीन वर्ड यूज करते थे. यहाँ पर शेक्सपियर ने एक्चुअली में इट्स लाइक अ सटायर, ही हैज यूज दिस, कि बहुत सारे लोग होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं फील करते नॉर्मल लैंग्वेज बोल के, उनको भारी भरकम चीज़ें यूज करनी होती हैं, या फिर वो फ्रेजेस और टर्म्स इधर उधर से याद करके कहीं पे भी बोल देना होता है. तो इसने ठीक भी नहीं बोला. ही सेड द सिस्टर्स थ्री, ही शुड हैव सेड the three sisters and such branches of learning means learned conception of faith. और भी faith, destiny से related जितने भी idioms phrases हैं उन सब के बारे में मैं बोल रहा हूँ. He is deceased. Your son means Lancelot Gobbo is deceased. He is dead. और as you would say in plain terms, gone to heaven. या फिर simple way में बोलूँ तो वो मर गया स्वर्ग चला गया, स्वर्ग सिधार गया. तो यहाँ पे शेक्सपियर ने सटायर यूज किया था. गोबो सेड, मैरी, गॉड फॉरबिड, द बॉय वॉज द वेरी स्टाफ ऑफ माई एज, माई वेरी प्रॉप. स्टाफ का मतलब है सपोर्ट एंड प्रॉप का मतलब भी है सपोर्ट. सो ही इज सेइंग, व्हाई गॉड फॉरबिड, वो तो मेरे बुढ़ापे की लाठी था, मेरा सहारा था ओल्ड एज का, वो कहाँ चला गया. लॉन्सलॉट पहले तो असाइड होके बोला, डू आई लुक लाइक अ कजल और अ होवल पोस्ट, a staff or a prop. मतलब मैं क्या, कजुल मीन्स अ शॉर्ट थिक स्टिक, छोटी सी कोई स्टिक हो. पोस्ट, होवल पोस्ट क्या होता है, इट इज अ टिम्बर सपोर्टिंग अ पुअर ड्वेलिंग. कोई घर गिरने वाला हो तो उसको रोकने के लिए एक टिम्बर यूज करते हैं. एंड स्टाफ एंड प्रॉप तो आई टोल्ड यू इट्स अ सपोर्ट. तो वो बोलते हैं मैं क्या हूँ, मैं कोई लकड़ी हूँ क्या जो ये ऐसी बातें बोल रहे हैं. फिर वो लॉन्सिलॉट को बोलता है, देखो उसके बाद एक डैश, एक हाइफन टाइप दिया है, और उसने बोला है, डू यू नो मी फादर, आप मुझे जानते हैं फादर. गोबो सेड, अलाग द डे. अलाग द डे मीन्स ही इज सैड, ही ग्रोन्स. आई नो यू नॉट, यंग जेंटलमैन, आई डोंट नो यू, बट आई प्रे यू टेल मी, इज माई बॉय, गॉड रेस्ट हिज सोल, अलाइव और डेड. आई डोंट नो यू बट आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बताओ मेरा बेटा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जिंदा है या नहीं है. लॉन्सलॉट से, डू यू नॉट नो मी फादर, अरे आप मुझे नहीं जानते क्या. गोबो अगेन सेड, अलैक सर, आई एम सैंड ब्लाइंड, आई एम हाफ ब्लाइंड, आई नो यू नॉट, मैं नहीं जानता आपको. लॉन्सलॉट ने बोला, ने इंडीड, इफ यू हैड योर आईज यू माइट फेल ऑफ द नोइंग मी. आपके पास आंखें होती ना तो भी मुझे नहीं पहचान पाते. इट इज अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड. जो इंटेलिजेंट फादर्स होते हैं वही अपने बच्चे को पहचान पाते हैं. ये वाला जो प्रोवर्ब है, एक्चुअली में प्रोवर्ब है
इट इज अ वाइज चाइल्ड दैट नोज हिज ओन फादर, बट उसने इन्वर्ट कर दिया है, उसने बोला इट इज अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। वेल ओल्ड मैन, आई विल टेल यू न्यूज ऑफ योर सन। मैं आपको आपके बेटे के बारे में बताता हूँ। गिव मी योर ब्लेसिंग, एंड देन ही नील्स, झुकता है और बोलता है गिव मी योर ब्लेसिंग। ट्रुथ विल कम टू लाइट, सच तो सामने आ ही जाएगा। मर्डर कैन नॉट बी हिड लॉन्ग, अगर कहीं मर्डर हो तो उसको ज्यादा छुपाया नहीं जा सकता। अ मैन्स सन में, बट इन द एंड ट्रुथ विल आउट, मर्डर को नहीं छुपा सकते हैं, किसी आदमी के बच्चे को जरूर, बेटे को जरूर छुपा सकते हैं, लेकिन एंड में ट्रुथ हमेशा बाहर आ जाता है। गोबो सेड, प्रे यू सर, स्टैंड अप, आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सलॉट माई बॉय, प्लीज स्टैंड अप, आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सलॉट माई सन। Then Lancelot said, pray you, I'm requesting you, let's have no more fooling about it. अब Lancelot को भी लग रहा है कि यार ये भी अब मुझसे प्रैंक ही कर रहे हैं। So he said कि let's stop talking like this, let's stop fooling each other, but give me your blessing, अपना आशीर्वाद दो भाई। I am Lancelot, your boy that was, past में भी I was your boy, your son that is, अभी प्रेजेंट में भी हूँ, your child that shall be, फ्यूचर में भी रहूंगा, मैं ही हूँ जो हूँ। Gobo, I cannot think you are my son. मुझे नहीं believe you are my son. So Lancelot said, I know not what I shall think of that, but I am Lancelot, the Jew's man. मुझे नहीं पता अब क्या बोलना चाहिए, but I am Lancelot, the Jew's man. Man means servant, और Jew तो पता है Sherlock. And I am sure Marjorie, your wife, is my mother. अपनी mother का नाम बताता है as a proof कि Marjorie, your wife, is my mother. So when Gobo heard name of his wife, he said, her name is Marjorie. Indeed, yes, her name is Marjorie. I will be sworn, means I can swear, if thou be Lancelot, if you are Lancelot, thou art mine own flesh and blood. If you are Lancelot, तो तुम मेरे फ्लैश एंड ब्लड हो। और फिर वो बहुत प्यार से लॉन्सलॉट के सर को ऐसे सहलाता है। लॉर्ड वर्शिप माइट ही बी, May the Lord be praised. What a beard has thou got? क्या beard आई है तुम्हारी, क्या दाढ़ी आई है तुम्हारी। Thou has got more hair on thy chin. You have got more hair on your chin than Doblin, my Phil horse, has on his tail. Phil horse means cart horse. मेरा जो horse है डॉबलिन, उसके टेल में जितने बाल हैं उससे ज्यादा तो तुम्हारे फेस पे बाल हैं, तुम्हारे चिन पे बाल हैं। Lancelot अब खड़ा होता है। Remember he was in kneel down position. It should seem then that it's not Dobbin, that Dobbin's tail grows backward. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी जो टेल है वो बैकवर्ड ग्रो कर रही है, मतलब शॉर्टर हो रही है पहले से। आई एम श्योर ही हैड मोर हेयर ऑफ का मतलब है ऑन हिज टेल देन आई हैव ऑन माई फेस व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था उसकी टेल में ही ज्यादा बाल थे, तो या तो वो बैकवर्ड ग्रो कर रही है। गोबो सेड, लॉर्ड हाउ आर्ट दाउ चेंज्ड, हाउ आर यू चेंज्ड? देन ही आस्क्ड, हाउ डज you and your master agree, means how do you people get along with each other, Sherlock and you. I have brought him a present, मैं तुम्हारे मास्टर के लिए, शैलोक के लिए गिफ्ट लेकर आया, प्रेजेंट लेकर आया। How agree you now? So Lancelot replied, well, but for mine own part, as I am concerned, I have set up my rest, I have made up my mind to run away. मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। So I will not rest till I have run some ground. मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं कुछ डिस्टेंस भाग चुका हूँ। Ground means distance. My master's is a very Jew. He is a true Jew. Very Jew means true Jew. Give him a present. If you want to give him a present, give him a halter. Halter is a rope जिससे लटके और I am famished. Famished means starved. मतलब मैं भूख से एकदम मर रहा हूँ in his service. मुझे खाना खाने को नहीं मिलता। You may tell every finger I have with my ribs. उल्टा बोला उसने, क्या बोला? You may tell, आप मेरी एक एक फिंगर बता सकते हो अपने रिब्स से फील करके। What he wanted to say was, you may tell every rib with your finger. आप मेरी एक एक रिब काउंट कर सकते हो अपनी फिंगर से। Father, I am glad you are come. I am really happy that you have come. Give me your present to one Master Bassanio. If you want to give this gift, give it to Master Bassanio.
ओहो, ही वॉन्ट्स टू जॉइन मास्टर बेसेनियो। मास्टर बेसेनियो जो है उनके पास तो खुद का पैसा ही नहीं है, वो तो एंटोनियो के पास गए थे पैसा लेने। लेकिन बिकॉज ही शोज ऑफ बिकॉज इतना अच्छी वो लाइफस्टाइल शो करता है, इतनी ग्रैंड, बोला भी था ना मुझे जितना अलाउ करते हैं मेरे मीन्स में उससे ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जीता हूँ, उसकी वजह से लॉन्सलॉट भी धोखे में आ गया है। So he said, he gives rare new liveries. Liveries means uniforms. If I serve अपने सर्वेंट्स को, तो वो अपने सर्वेंट्स को नए नए यूनिफॉर्म्स देते हैं, इसलिए जाना है लॉन्सलॉट को वहाँ पे। एंड कोइंसिडेंस है कि पौशा के पास जाने से पहले वो ऑर्डर भी देने वाला है न्यू यूनिफॉर्म्स का। इफ आई सर्व नॉट हिम, अगर उन्होंने मुझे जॉब नहीं दी, आई विल रन एज फार एज गॉड हैज एनी ग्राउंड, जहां तक इस धरती की सीमा है, लिमिट्स तक मैं दौड़ूंगा, मैं भागूंगा, मतलब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ओ रेयर फॉर्च्यून, अरे ये तो कितना रेयर लक है। हियर कम्स द मैन, ये आए बेसेनियो। टू हिम मीन्स गो टू हिम फादर, फॉर आई एम अ ज्यू। जाओ जल्दी जाओ, क्योंकि मैं ना ज्यू बनता जा रहा हूँ। अगर मैंने उस ज्यू को और शायलोक को और ज़्यादा सर्व करा तो मैं भी एक ज्यू ही बन जाऊंगा। सी द वर्ड इज यूज लाइक एन इंसल्ट, कि मैं वो बन जाऊंगा तो ये मेरे लिए कितनी खराब बात है। Enter Bassanio with Leonardo and other followers. And with entry of Bassanio, second section of this scene begins. First section क्या था, वो जो लॉन्सलॉट ने जो अपने साथ ही एक डायलॉग किया था, सॉरी मोनोलॉग किया था, एंड फिर उसके बाद अपने फादर के साथ जो उसका कॉन्वर्जेशन था, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड सेक्शन इज एंट्री ऑफ बसैनियो, जहाँ पर लॉन्सलॉट विल टॉक टू बसैनियो। ओके, Bassanio, you may do so, but let it be so hasted that supper be ready at the farthest by 5 of the clock. वो अपने किसी अटेंडेंट से बोल रहा है, अपने सर्वेंट से बोल रहा है, तुम वो कर सकते हो, बट लेट इट बी सो हेस्टेड, इतना जल्दी करो, स्पीडेड अप, दैट supper be ready at the farthest by 5 of the clock. Farthest means latest. By 5 o'clock, latest by 5 o'clock supper ready हो जाना चाहिए. See these letters delivered, ये letters deliver हो जाए. Put the liveries to making, uniforms जो है उन्हें बनने को डाल दो. And desire Graciano to come anon to my lodging. और ग्रेशियानो को जाकर बोलो that I want to meet him at once. Anon means at once, to my lodging. Lodging means room. So now the servant चला गया. So Lancelot said to him father. To him father means speak to him. उसने बसैनियो को देखा और उसको देख के बोला speak to him father. गोबो जाकर बोला God bless your worship, मतलब रिस्पेक्टफुल वे में बोला सर. बसैनियो, Gramercy. Gramercy means thanks. Wouldst thou aught with me? Aught means anything. Do you want anything from me? गोबो, here's my son, sir, a poor boy. ये मेरा बेटा है सर, एक गरीब लड़का. लॉन्सेलॉट तुरंत बोला, not a poor boy, sir, but a rich Jew's man. I'm not a poor boy, sir, but I am servant of a rich Jew. Obviously, कौन है सबको पता है. That would, sir, as my father shall specify, and that would, what he wants. मतलब मैं एक पुअर लड़का नहीं, रिच मैन का, रिच ज्यू का सर्वेंट हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ वो आपको मेरे फादर बताएंगे. तो गोबो ने कंटिन्यू करा, ही हैथ अ ग्रेट इन्फेक्शन. इन्फेक्शन नहीं, अफेक्शन होगा यहाँ पे. सर, एज वन वुड से टू सर्व, उसको बहुत कुछ चाहिए. अगर मैं बोल सकूँ टू सर्व, वो बोलने वाला था, लेकिन इसके पहले लॉन्सेलॉट ने फिर इंटरप्ट करा और कहा, इंडीड द शॉर्ट एंड द लॉन्ग इज, येस द शॉर्ट एंड द लॉन्ग. शॉर्ट एंड द लॉन्ग उसने गलत बोला, होना चाहिए था लॉन्ग एंड द शॉर्ट. इट इज एक्चुअली एन इडियम. लॉन्ग एंड द शॉर्ट मीन्स ऑल दैट्स नीड टू बी सेड, मतलब जो हम कहना चाहते हैं. तो उसने गलती से बोला शॉर्ट एंड द लॉन्ग. आई सर्व द ज्यू एंड हैव अ डिजायर एज माई फादर शेल स्पेसिफाई. आई सर्व द ज्यू, मैं ज्यू को सर्व करता हूँ, एंड आई हैव अ डिजायर एज माई फादर शेल स्पेसिफाई. मेरी एक डिज़ायर है, एज माई फादर शेल स्पेसिफाई, जैसा कि मेरे फादर अब आपको बताएंगे. तो वो ये नहीं बता रहा उसे चाहिए क्या, लेकिन बीच बीच में इंटरप्ट पूरा कर रहा है. गोबो सेड, हिज मास्टर एंड ही
saving your worship's reverence, our scarce cater cousins. His master and he, हाँ master कौन है उसका? Shylock. तो his master, Lancelot's master and he, मेरा बेटा उस और उनके master, are scarce cater cousins. Scarce means not. They are not good friends. मतलब they are not in friendly terms with each other. So Lancelot said, to be brief, the very truth is that the Jew, having done me wrong, doth cause me, as my father being, I hope an old man, shall fructify unto you. The truth is that the Jew, having done me wrong, Jew ने मेरे साथ कुछ गलत किया है और उस वजह से मैं forced हूँ. क्या करने के लिए? वो मेरे फादर आपको नोटिफाई करेंगे. बट नोटिफाई की जगह लॉन्सेलॉट ने गलती से बोला फ्रूटिफाई. ओहो, ये लोग एक बार में बोल क्यों नहीं रहे? गोबो ने बोला, आई हैव हियर अ डिश ऑफ डव्स दैट आई वुड बिस्टाउ अपॉन योर वर्शिप एंड माई सूट इज. मैं आपके लिए एक डिश ऑफ डव्स लाया हूँ. फाइन, उसने बोला था ना कि प्रेजेंट लाया, तो दैट वॉज अ डिश, खाने का सामान. एंड आई वुड बिस्टाउ अपॉन योर वर्शिप, जो मैं आपको दूंगा, और मेरी रिक्वेस्ट है. इससे पहले वो रिक्वेस्ट बोलता है, लॉन्सेलॉट ने बोला, इन वेरी ब्रीफ द सूट इज इम्पर्टिनेंट टू माई सेल्फ. शॉर्ट में बोले तो जो रिक्वेस्ट है दैट इज इम्पर्टिनेंट टू माई सेल्फ, वो रिक्वेस्ट मुझसे रिलेटेड है. इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है इररेलेवेंट, तो उसको यूज करना चाहिए था पर्टिनेंट, क्योंकि पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट. तो ही शुड हैव सेड द सूट इज पर्टिनेंट टू माई सेल्फ, पर्ट इज रेलेवेंट टू मी, एज योर वर्शिप शैल नो बाय this honest old man, and though I say it, though old man, yet poor man, my father. तो जो मेरी वो रिक्वेस्ट है वो मुझसे रिलेटेड है, बट वो आपको मेरे फादर बताएंगे. एक ऑनेस्ट मैन, एक ओल्ड मैन, येट पुअर मैन, बट ही इज माई फादर. फाइनली बसैनियो ने बोला बीच में, वन स्पीक फॉर बोथ. एक जन बोलो ना, दोनों क्यों बोल रहे हैं? व्हाट वुड यू, क्या चाहिए तुमको? तो लॉन्सेलॉट ने बोला, सर्व यू सर, आई वॉन्ट टू बिकम योर सर्वेंट. गोबो सेड, दैट इज द वेरी डिफेक्ट ऑफ द मैटर. सर, तो डिफेक्ट नहीं होगा, क्या होगा? इफेक्ट. मतलब दैट इज द कंक्लूजन of what we all are trying to say, we both are trying to say. Bassanio said, I know thee well, I know you well, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ. Thou hast obtained thy suit, your request is granted. You have obtained your request, जो तुम चाहते थे तुम्हें मिल गया. Shylock, your master, spoke with me this day. आज ही मेरी बात हुई थी Shylock से. And hath preferred thee, he has recommended you to me. If it is preferment, प्रिफरमेंट मीन्स प्रमोशन. अगर तुमको लगता है कि ये प्रमोशन है टू रीच अ रिच ज्यू सर्विस, टू बिकम द फॉलोअर ऑफ सो पुअर अ जेंटलमैन. अगर तुम्हें लगता है कि ये एक प्रमोशन है, रिच पर्सन, रिच ज्यू की नौकरी छोड़ के एक पुअर पर्सन की नौकरी करना, देन यू आर वेल. अगर इनकेस आप लोग ये सोच रहे हो कि कहाँ बोला, कब बात हुई शायलॉक की बसैनियो से, रिमेंबर शायलॉक ने बोला था कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरा जो घर है वो एक अनसेफ, एक इररिस्पॉन्सिबल सर्वेंट के पास है, मतलब वो उसका ध्यान रख रहा है. रिमेंबर, सो ही हैज़ मेंशन्ड इट. तो बसैनियो इज ओके टू टेक हिम अंडर हिम. So Lancelot said, the old proverb is very well parted between my master Shylock and you sir. एक बहुत पुराना proverb है जो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे से divide होता है. proverb क्या है? The grace of God is enough. The grace of God is enough. ये है proverb. अब वो बोलता है you have the grace of God. आपके पास grace of God है और उसके पास enough है. प्रोवर्ब क्या है फिर बता रही हूँ, देखो. ग्रेस ऑफ द गॉड इज इनफ. सो ही इज सेइंग ग्रेस ऑफ द गॉड, ये जो पार्ट है प्रोवर्ब का, ये तो आपके पास है, बसैनियो के पास है. एंड इनफ जो है वो शायलॉक के पास है. तो इनफ का मतलब हुआ यहाँ पे अर्थली हैप्पीनेस, पोजेशंस, वो तो शायलॉक को मिल जाएंगी, लेकिन सेल्वेशन के लिए जो भगवान की ब्लेसिंग चाहिए वो तो आपके पास है. बसैनियो बोला, दाउ स्पीकेस्ट इट वेल, तुम बातें तो बड़ी अच्छी करते हो. गो फादर विद दाई सन, जाइए आप अपने बेटे को अपने साथ ले जाइए. टेक लीव ऑफ दाई ओल्ड मास्टर, उस ओल्ड मास्टर की उनसे जाओ, उनसे छुट्टी लो. एंड इंक्वायर माई लॉजिंग आउट, और पता करो कि मेरा घर कहाँ है और आ जाना घर पे. टू हिज फॉलोअर्स, देन ही सेड टू हिज फॉलोअर्स, गिव हिम अ लिवरी मोर गार्डेड दैन हिज fellows. Guarded means braided.
सो मीन्स लॉन्सलॉट को जो यूनिफॉर्म मिलेगी वो ज़्यादा ऑर्नामेंटल हो, उस पर स्ट्राइप्स हो इन कंपेरिजन टू माई अदर सर्वेंट्स. सो ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू शो दैट देखो मैं तुमको ज़्यादा वो कंफर्ट देने वाला हूँ ज़्यादा, और मे बी वो बसेनियो का जेस्टर बनेगा. सो लॉन्सलॉट सेड फादर कम इनसाइड. आई कैन नॉट गेट अ सर्विस. मुझे जॉब नहीं मिल सकती है क्या? अरे मुझे मिल गई क्या? आई हैव नेवर अ टंग इन माई हेड. आई कांट टॉक प्रॉपरली फॉर माई सेल्फ. आई कांट टॉक वेल फॉर माई सेल्फ. देन ही लुक्ड ऑन हिज पाम. पाम मीन्स ये तो पता है. इफ एनी मैन इन इटली हैव अ फेयरर टेबल, अगर किसी पर्सन के पास हैज अ फेयरर पाम, मोर फॉर्चुनेट पाम, एंड दैट पर्सन ऑफर्स टू स्वेयर अपॉन अ बुक, अगर वो पर्सन कसम खाए बाइबल के ऊपर हाथ रख के, तो मुझे बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो लकी कोई हो ही नहीं सकता. तो वो ये बोल रहा है कि नो पर्सन कैन बी फॉर्चुनेट दैन मी. उसको बसेनियो के पास जॉब मिली है, उसको ऐसा लग रहा है. आई शैल हैव गुड फॉर्च्यून. गो टू मीन्स लुक. हेयर्स अ सिंपल लाइन ऑफ लाइफ. तो वो खुद ही पामिस्ट बन के अपने हाथ को देख के बोल रहे थे, देखो ये एक सिंपल लाइन ऑफ लाइफ है. हेयर्स अ स्मॉल ट्रिफल मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट लाइन ऑफ वाइव्स. हाँ, अब अपने मैरिज के बारे में बोल रहा है. अलास 15 वाइव्स इज नथिंग. 15 वाइव्स होती ही क्या है? 11 widows and 9 maids. Maids means virgins. Is a simple coming in for one man. Maybe coming in से he means modest income. Maybe he is thinking कि अगर इतनी सारी wives आने वाली हैं मेरी, तो सबके थ्रू डाउरी भी आएगी. And then to escape drowning thrice and to be in peril of my life with the edge of a feather bed. Here are simple escapes. Then he is saying कि जब मेरी लाइफ में रिस्क भी आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल बी कॉट विद समवन एल्सेज वाइफ इन अ बेड, तो ये छोटी छोटी एस्केप लाइन्स भी बनी हुई है, मैं उससे रिस्क से भी बाहर निकल जाऊंगा. वेल, इफ फॉर्च्यून बी अ वुमन, शी इज अ गुड वेंच फॉर दिस गियर. गियर मीन्स पर्पस, wench means lady. If fortune is a lady, then she is doing good for her purpose. क्यों फॉर्च्यून को वुमेन से कंपेयर करा गया है लेडी से? क्योंकि फॉर्च्यून जो लक होता है वो भी बड़ा डाइसी होता है, और लोग फीमेल्स को भी कंसिडर करते हैं टू बी वेरी इनकंसिस्टेंट और अनप्रिडिक्टेबल. फादर, कम, आई टेक माई लीव ऑफ द Jew in the twinkling of an eye. In just a moment. Twinkling of an eye means in just a moment I'll take the leave of this Jew. Okay. Exeunt, Lancelot and Old Gobbo. So second section finished. Old Gobbo, Lancelot को job मिल गई. Let's begin the third part. Bassanio said, I pray thee, good Leonardo, I request you, good Leonardo, think on this. वो उसको एक piece of paper देता है. These things being bought and orderly bestowed. ये चीज़ें मैंने खरीद ली हैं, अरेंज कर ली हैं, और इनको अच्छे से अरेंज मतलब आई हैव केप्ट देम प्रॉपरली. रिटर्न इन हेस्ट, तुम जाओ जल्दी आओ. फॉर आई डू फीस्ट टुनाइट माई बेस्ट एस्टीम्ड एक्वेंटेंस, क्योंकि आज मैंने डिनर पे बुलाया है अपने मोस्ट रिस्पेक्टेबल फ्रेंड को. हाई डी गो, तो उसको बोलता है तुम जाओ, गो नाउ. Leonardo, my best endeavors shall be done herein. My best efforts, I'll put in my best efforts. Now Gratiano enters. Gratiano, where is your master? So Gratiano asks, where is your master? Bassanio. Leonardo answers, yonder sir, he walks. He is walking over there. And after that Leonardo also exits. Now is the dialogue between Gratiano and Bassanio. Gratiano, Signor Bassanio. Bassanio बोलता है, oh Gratiano, Gratiano, I have a suit to you, request. अब तक याद हो जाना चाहिए, suit means request. Bassanio, you have obtained it. जो भी request है जाओ, fulfill हो गई. Gratiano, you must not deny me. I must go with you to Belmont. Please मुझे मना मत करना, मुझे भी तुम्हारे साथ Belmont जाना है. Okay. Bassanio, why? Then you must. But hear thee, Gratiano. क्यों जाना है? But ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो ध्यान से सुनो. Thou art too wild. तुम्हारे जो manners हैं, जो behavior है वो बड़ा wild है. Too rude, बड़ा unmannered है. And bold of voice, and you have a very rude and loud voice at times. Parts that become thee happy enough. वो चीज़ें जो तुम्हें सूट करती हैं यहाँ पे.
एंड इन सच आइज एज आर्स अपियर्स नॉट फॉल्ट, और हम लोगों को वो फॉल्ट की तरह नहीं नजर आता है। तुम्हारा ये जो बिहेवियर है यहाँ पे हम सबको अच्छा लगता है, बट वेयर दाउ आर्ट नॉट नोन, बट वहाँ जहाँ तुमको और तुम्हारे बिहेवियर को लोग नहीं जानते हैं, वेयर देयर दे शो समथिंग टू लिबरल, वहाँ पे अगर तुम जैसा बिहेव करते हो बहुत फ्रीली वैसा करोगे, तो प्रे दी टेक केयर, टेक केयर, पेन मीन्स केयर, टू अलाइव विथ सम कोल्ड ड्रॉप्स ऑफ मॉडेस्टी, मीन्स यू नीड टू टोन डाउन विद अ ड्रॉप ऑफ डिसेंसी। इतना जो एक्साइटेड और वाइल्ड रहते हो थोड़ा सा नीचे आ जाओ। दाई स्किपिंग स्पिरिट लेस्ट थ्रू दाई वाइल्ड बिहेवियर योर अनरूली डिस्पोजिशन, जो तुम मतलब एकदम बिंदास जैसा करना है वैसा बिहेव करते हो, वो जो करते हो अगर वैसा वहाँ पे करोगे, आई बी मिसकंस्ट्रक्टेड, आई मे बी मिसअंडरस्टूड, इन द प्लेस आई गो टू एंड लूज माई होप्स, और मेरा जो शादी करने का चांस है पोशा से वो कम हो सकता है बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। सो ग्रेशियनो सेड, सिग्नियर बसैनियो हियर मी, नाउ यू लिसन मी, इफ आई डू नॉट पुट ऑन अ सोबर हैबिट, अगर मैं बहुत सीरियस सोलम ना लगूँ वहाँ पे, टॉक विद रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट से सबके साथ बात ना करूँ, एंड स्वेयर बट नाउ एंड देन, और कभी कभी कसम खाऊँ, रोज ना खाऊँ, हर समय ना खाऊँ, वियर प्रेयर बुक्स इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में हमेशा प्रेयर बुक मिलेगी, आई विल ऑलवेज लुक डेम्योरली मीन्स सीरियस, ने मोर, वाइल ग्रेस इज सेइंग हुड माइन आइज, और जब प्रेयर बिफोर मील होती है तो उस टाइम पे मैं अपनी आइज कवर रखूंगा विद माई हैट एंड साई एंड से एमिन, और मैं एमिन भी बोलूँगा। यूज ऑल द ऑब्जर्वेंस ऑफ सिविलिटी, जिस भी चीज़ों से पता चलेगा दैट आई एम गुड मैनर्ड, वो जो आउटवर्ड फॉर्म्स होते हैं जिससे ये पता चलता है आई एम गुड मैनर्ड पर्सन, आई विल यूज ऑल दोज थिंग्स, लाइक वन वेल स्टडीड इन अ सैड ऑस्टेंट, एक ऐसे पर्सन की तरह बिहेव करूँगा जिसने एक प्रॉपरली पढ़ाई करी है, मतलब जो हमेशा सीरियस अपीयरेंस के साथ रहता है, वाई टू प्लीज हिज ग्रैंड मीन्स ग्रैंड मदर। अगर मैं ऐसा ना करूं, एक ऐसा बच्चा बन के ना दिखाऊं जो हमेशा सीरियस बिहेव करता है ताकि उसकी ग्रैंड मदर उससे इम्प्रेस हो जाए, नेवर ट्रस्ट मी मोर, मुझे कभी ट्रस्ट मत करना। बसैनियो सेड, वेल वी शेल सी योर बियरिंग, चलो देखते हैं हाउ विल यू बिहेव, व्हाट इज योर कंडक्ट देयर। ग्रेशियनो, ने बट आई बार टू नाइट, लेकिन आज रात तो ये नहीं करना होगा ना, आज की रात को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। यू शेल नॉट गेज मी बाय वॉट वी डू टू नाइट, प्लीज डू नॉट प्रिडिक्ट माई बिहेवियर, प्लीज डू नॉट जज माई बिहेवियर दैट हाउ आई विल बिहेव देयर बेस्ड अपॉन वॉट आई डू टूडे। बसैनियो सेड, नो दैट वर पिटी, नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा करोगे तो बहुत बुरा लगेगा। आई वुड एंट्रीट मीन्स रिक्वेस्ट यू रेदर टू पुट ऑन योर बोल्डेस्ट सूट ऑफ मर्द, पार्टी ड्रेस एंड मोस्ट अम्यूजिंग मैनर के साथ आज आना, फॉर वी हैव फ्रेंड्स, क्योंकि आज तो सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं ना, दैट पर्पस मेरिमेंट, और हमारा पर्पस ही वही है कि हम एंजॉय करें, बट फेयर यू वेल, बट अभी के लिए बाय एज आई हैव सम बिजनेस, क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो ग्रेशियनो सेड, एंड आई मस्ट टू लोरेंजो एंड द रेस्ट, और मुझे भी जाना है लोरेंजो और बाकी के पास, बट वी विल विजिट यू एट सपर टाइम। फिनिश दिस सीन, फिनिश। सीन बड़ा था लेकिन सीन सिंपल है। सीन इज डिवाइडेड इनटू 3 sections. First was where Lancelot is having a monologue with himself where he is thinking that he should leave Shylock or not, and finally the devil side of him wins and he leaves Shylock. He decides to leave Shylock. उसके बाद उसका उसके फादर के साथ इंटरेक्शन होता है जहाँ वो अपने फादर के साथ प्रैंक करता है कि मैं आप कौन है, मतलब आप किसको ढूंढ रहे हैं टाइप्स, एंड देन ही टेल्स हिज फादर दैट ही इज लीविंग Shylock and he wants to join Bassanio. Second section of this scene में they interact with Bassanio and tell him that Lancelot wants to serve Bassanio, to which Bassanio agrees. And third section में Gratiano आता है बसैनियो के पास और उसको बोलता है दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू अकम्पनी यू टू बेलमोंट एंड आई विल बी इन माई बेस्ट बिहेवियर देयर। सो वी हैव डन दिस मच। ये बहुत बड़ा सीन था जो हमने कवर कर लिया। अब मैं कल लेकर आऊँगी Act 2 Scene 3. This is Anushri signing off.
थैंक यू। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज शेयर इट विद as many friends of yours as you can. Thank you.